when I go to speak, and if it is student leaders, youth leaders, वैसे I don't know how people in their 40s and 50s manage to be youth leaders in this country. So I see all men sitting in a row. And as a token presence, they bring some girl who carries some flowers and this very silly, expensive bouquet of flowers as a token of women's presence. So I want to begin by congratulating you that you have not done that silly, stupid tokenism, that you have a woman of substance here. And can I have a promise from all of you? Do you know what is the name when you have a panel which has only men? There is a name for it. Can someone shout it? Manel. When there is a panel on which there are only men, it is called Manel. So can I take a promise from all the student leaders here and here that now in future in Osmania University, we shall never have a Manel on the stage. Okay? Okay. I should also congratulate those of you who went to Jantar Mantar and those who did not go to Jantar Mantar but participated in these protests here in Hyderabad or in their hometown or in the villages. My salute to all of you who participated there. And my congratulations on still retaining a culture in Osmania University, which has had a long tradition of movements, of protests, of resistance, of being open to public discussions which are not of liking to the powers that be. Unfortunately, in this country, in a large number of universities, it is not possible to have a meeting like this anymore. I cannot imagine a single university of Uttar Pradesh where you can have a meeting like this, where you can discuss our country, its future, democracy, normal things. You cannot have a normal discussion in this country. In 4 universities of this country, the gates of the universities were closed in order to prevent me from speaking. This is the situation in this country. So I should congratulate you that you have a culture here where you can discuss things openly, you can dissent, you can say things that Mr. Modi may not like, and tomorrow you may also say things that Mr. Revant Reddy does not like. Doesn't matter. University is to debate things openly, to talk openly. Congratulations for retaining that public culture. I should also begin with an apology. Apology on behalf of my generation. हर जनरेशन की ये जिम्मेवारी होती है कि अपने से आने वाली जनरेशन को जैसा मुल्क मिला था उससे बेहतर बना के दे, या कम से कम वैसा तो दे जैसा पैदाइश के वक्त उसे मिला था. I was born in 1963.
India was poor at that time. We had famines. In military terms also we were not a very strong country. But in that India, rapists were not garlanded. जिस मुल्क में मैं पैदा हुआ था उसमें रेप करने वाले जब जेल से बाहर आते थे उनको माला पहनाने के लिए लोग खड़े नहीं होते थे। जब सड़क पे लिंच किया जाता था, लिंच किया नहीं जाता था और किया जाता था, कोई ताली नहीं बजाता था उसके ऊपर। जब किसी के घर पे बुलडोजर चलता था, अगर चलता था, तो किसी दूसरे की बर्बादी पे जश्न मनाने वाला कोई नहीं होता था। And I really want to apologize to you on behalf of my generation that we could not retain at least that much in this country. मुझे वाकई मन से शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम आपके लिए वो हिंदुस्तान भी बचा के आपको दे नहीं पाए। 4 पैसा फालतू आ गया वो कोई बात नहीं है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, अचीवमेंट नहीं होता, मगर इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को नहीं हम बचा सके। I feel ashamed of it as a generation. But when I hear you, when I hear the young people today, when I heard Ansar, your energy, I heard Ruchit, your clarity, I heard Arunya, your poise, your reflection. And when I heard Pratyusha, your conviction, it gives me so much hope in the future of this country. हम लोगों ने जो नहीं किया वो आप कर सकते हैं, मुझे इसका भरोसा है। हमसे जो गलती हुई, हमसे जो कमी रह गई, उसे आप लोग पूरा करेंगे। That is a hope that I draw from you. And that is also largely the hope I draw from this Gen Z protest. So when I speak of the Gen Z protest, I'll ask 3 questions, try and answer them. Who is this protest by? What is this protest about? What has it achieved? And finally, of course, the 4th question, what is the way forward? ये किसकी प्रोटेस्ट है, किस बारे में है, किस मुद्दे पे है, इससे क्या हासिल हुआ है और आगे का रास्ता क्या है? इन 4 सवालों पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। This mix of Hindi and English is okay? Because sometimes, I get tired of speaking English. One of my friends used to say, after speaking in English for half an hour, he would say, "Zuban ऐंठ गई है अंग्रेजी बोलने." So I have this habit, I slip into Hindi after that, just to be more at home with myself. Who is this movement by? कौन है ये Gen Z? नाम तो बड़ा ही Gen Z है, but as you pointed out, it is not just that urban metropolitan youth. हमारी प्रॉब्लम ये होती है, we identify any movement with some faces, some names. So किसका मूवमेंट था? CJP का मूवमेंट था।
ऑफ कोर्स सीजेपी का था, कोई शक नहीं है, पर सिर्फ सीजेपी का नहीं था। देयर वर so many other youth organizations at Jantar Mantar, outside Jantar Mantar, all over the country. There must have been hundreds of students organizations, but there were millions of students who were not part of any student organization. That is what we should understand. हमें मूवमेंट को सिर्फ स्टेज पे जो चंद लोग बैठे होते हैं उससे नहीं पहचानना चाहिए। मूवमेंट का कैरेक्टर स्टेज के इस तरफ जो लोग बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, उनसे पहचानना चाहिए। फॉर मी देयरफॉर दिस मूवमेंट इज not just a movement of one organization or one place. सारा अटेंशन दिल्ली और जंतर मंतर को मिलना चाहिए, अच्छी बात है, मगर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट that between 20th and 25th of July last year, protests were held in at least 100 cities of this country, possibly 400-500 towns of this country. That is the real strength. That is where the movement is. That is where the real energy is. And that is what got reflected in the energy of Jantar Mantar. By itself, Jantar Mantar energy is limited, but when it is linked to what is happening in Hyderabad, in Mumbai, in Allahabad, in Bhagalpur, then that is multiplied energy. So to my mind, this is a protest of the Indian youth, no less, no more. Protest of the Indian youth is how I would see it. आप इसको जेन जी कह लीजिए, आप इसको जेन अल्फा कह लीजिए, मुझे तो ये शब्द पता भी नहीं थे। आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन जो इसे जेन जेड पढ़ता है। जेड को जी बोलना चाहिए, ये मुझे अमेरिका में जाके पता लगा था कि ये लोग एक्स वाई जी बोलते हैं, एक्स वाई जेड नहीं बोलते हैं। सो माफ़ कीजिए, मैं उस पुरानी जनरेशन से हूँ, मुझे अभी भी जेन जेड दिखता है। जेन अल्फा क्या है मुझे आज भी नहीं पता है, मगर एक चीज पता है कि जब स्कूल के बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़े होके अपने प्रिंसिपल से पूछते हैं कि मेरी बिल्डिंग टूटी हुई क्यों है, यहाँ टीचर क्यों नहीं आता, गर्ल्स टॉयलेट क्यों नहीं है स्कूल में, फॉर मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसको जो नाम आप देना दे दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे खूबसूरत कोई चीज हो नहीं सकती जब स्कूल के बच्चे खड़े होकर सवाल पूछते हैं। उस एक दिन में उन बच्चों को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी सब समझ आ जाएगी और पढ़ाने की उन्हें जरूरत नहीं है। दिस इज लर्निंग बाय डूइंग, विच इज द बेस्ट लर्निंग इन द वर्ल्ड। What is this movement about? They say the movement is about paper leak. मैं बार बार कहता हूं नहीं भाई, ये सब तो सिर्फ सिम्टम्स हैं। Every time we make this mistake of saying this movement is about the immediate occasion, जैसे जब अन्ना मूवमेंट हुआ था, उसको भी अन्ना मूवमेंट कहते हैं, मेरे को वो नाम भी कभी समझ नहीं आया। तो वो जो अन्ना मूवमेंट हुआ था उसमें कहते थे दिस इज अबाउट लोकपाल था, लोकपाल वॉज द डिमांड, बट द मूवमेंट वॉज नॉट अबाउट लोकपाल। आई यूज्ड टू से देन दैट इट इज ए मूवमेंट अबाउट लोकबल, पीपल्स पावर, नॉट अबाउट लोकपाल लॉ। Similarly,
दिस इज नॉट अबाउट पेपर लीक। दुनिया में जब कोई भी बड़ी चीज होती है उसका एक ओकेजन होता है और उसके नीचे उसके डीप कॉजेज होते हैं। लोग ये जो पेपर लीक इज जस्ट एन ओकेजन, जस्ट दैट ट्रिगर पॉइंट। जैसे आपसे कोई कहे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों शुरू हुआ, क्योंकि सरायुओ में किसी ने गोली मार दी थी एक प्रिंस को। दैट इज नॉट व्हाई द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड, दैट वाज द ओकेजन व्हेन इट गॉट ट्रिगर्ड। इसी तरह से पेपर लीक इज जस्ट द ओकेजन, इज द ट्रिगर पॉइंट। इट इज नॉट द कॉज, इट इज नॉट द डिमांड, इट इज नॉट द मूविंग फोर्स। व्हाट इज द रियल थिंग? मैं 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पे यंग लोगों के साथ घूम रहा था और उन सबसे पूछ रहा था तुम क्यों आए। उसके बाद भी हमने 2-3 प्रोग्राम किए यूथ की बात, जिसमें हमने यंग लोगों से पूछा व्हाट ब्रॉट यू टू दैट। आई थिंक ओनली 1 or 2 मेंशन पेपर लीक। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पेपर लीक के पीछे पूरा एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, पूरा वो एग्जामिनेशन सिस्टम डिफेक्टिव है। और वो एग्जामिनेशन सिस्टम सिर्फ क्लास 12 का मेडिकल एंट्रेंस का नहीं है, वो एग्जामिनेशन सिस्टम जॉब्स का भी है। जब हम दिल्ली के प्रोटेस्ट को याद करते हैं तो हमें झारखंड के प्रोटेस्ट को भी याद करना चाहिए, उन्हें भी सैल्यूट करना चाहिए। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ जॉब्स। उसमें जो फ्रॉड हो रहा था झारखंड में, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। सो इट इज अबाउट द एंटायर एग्जामिनेशन सिस्टम, but it is not limited only to examination system. Examination system के नीचे है your education system, your system of employment, or I should say system of unemployment that runs this country. जो नई पीढ़ी को, यूथ को जो शिकायत है वो ये है कि ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ये नीचे से ऊपर तक लीक करता है। उनकी शिकायत है कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। उनकी शिकायत है कि जब हम ये सवाल पूछते हैं तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता। सो इट इज अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट, it is about accountability, it is about democracy. That is what this protest is all about. जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। हर यूनिवर्सिटी के गेट पे एक सुंदर सा कोई संस्कृत का श्लोक लिखा होता है, पता नहीं आपके उस्मानियाबाद में क्या लिखा है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में एक सुंदर सा लिखते हैं, विद्या वो जो आपको विमुक्त कर दे। इतनी सुंदर बात है, ऐसा कुछ नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी में। आवर इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज ए मैकेनिज्म फॉर इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत हार्श बात है, बुरी बात है, लेकिन सच है। बड़े बाप का बेटा बड़ा अफसर बने और गांव के मजदूर की बेटी चुपचाप से घर में जाए, दिहाड़ी की मजदूरी करे, ये इंश्योर करने के लिए जो सिस्टम है उसका नाम है हायर एजुकेशन इन इंडिया। हर तरफ गेट लगा रखे हैं, दरवाजे बंद कर रखे हैं। पुराने जमाने में क्या कहते थे, बड़े बाप का बेटा है, इसको तो बड़ा बनना ही चाहिए, फ्यूडलिज्म था। अब डेमोक्रेसी है, उसमें तो आप ऐसा कर नहीं सकते कि बड़ा बाप है, इसको तो बड़ा पोजीशन मिलना चाहिए। तो आपको फॉर्मली एग्जामिनेशन करवाने पड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट वही आना चाहिए, बड़े बाप के बेटे को बड़ी चेयर मिलनी चाहिए। और हमारा सारा एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम ये इंश्योर करता है।
बड़े बाप का बेटा या बेटी ऐसे स्कूल में जाएगी जिसमें मजदूर का बेटा कभी नहीं जा सकता, उसको उस लैंग्वेज में एजुकेशन मिलेगी जिसमें साधारण इंसान को कभी नहीं मिल सकती, उसको आगे ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जहां यूनिवर्सिटी का नाम सुन के आप कहेंगे अच्छा यहां से आए हैं, एकदम नौकरी मिल जाएगी। सो आपने इस देश में दो अलग क्यू बना रखी। गरीब का बेटा एक दूसरी क्यू में खड़ा होता है, अमीर का बेटा एक दूसरी क्यू में खड़ा होता है। शुरू से आखिर तक एजुकेशन सिस्टम इस देश का दो हिस्सों में बढ़ चुका है। Till my father's generation, I'm sure many of you would remember, for in your case is your grandfather's generation, but in my case, my father's generation, they all studied in the same Sarkari school. Everyone studied in a Sarkari school. By the time it came to my generation, some of us with some privilege studied in private schools, but those private schools were like Sarkari schools. I studied in a Khalsa school, private aided school. I learned my ABCD in class 6. And so it was technically private, but it was like a Sarkari school. At least it was a common school. So many of my classmates came from a farmer's family and went back to do farming. So at least I connected to the society. By the next generation, today, as Sukumar Garu said, today government schools all over India are only for Dalit, Adivasi or poor children. No one with even slight money sends their children to any Sarkari school. So you have two systems completely. When I went to the university, some of the best all the best universities of this country were public universities. There were no private universities. मुझे तो पता भी नहीं था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई हो सकती है। सब बड़े लोगों के बच्चे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, हैदराबाद, उस्मानिया, इस सब में पढ़ते थे। इस देश के एलीट के बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, इसलिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसा था, बड़े प्रोफेसर लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाते थे। अब क्या हुआ है? The elite of this country has exited the public education system completely. किसी बड़े बाप का बच्चा लगभग किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं जाता है। और अब सिर्फ 5-7 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें इस देश के एलीट को इंटरेस्ट बचा है, विच इज IIT, IIM, इनमें बचा है। 5-10 साल में इससे भी डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। So the tragedy, and I really want all of you to think about it, because this is one of the biggest questions of our time. We are living at a historic moment when large number of students from very disadvantaged background are coming for the first time to universities. जिनके माँ बाप ने, जिनके खानदान में किसी ने यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा था, वो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। इट शुड बी ए ब्यूटीफुल मोमेंट। इससे खूबसूरत बात किसी मुल्क के लिए क्या हो सकती है कि जिनके माँ बाप ने, जिसकी पूरी फैमिली में किसी कोई कॉलेज नहीं गया, वो जब पहली बार कॉलेज आता है, कितनी बड़ी बात होती है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। इट्स ए मोमेंट टू सेलिब्रेट। मगर जैसे ही ये लोग आने लगे,
हमारे पब्लिक एजुकेशन के दरवाजे बंद हो गए। हमने पब्लिक एजुकेशन में डिसइन्वेस्ट कर दिया, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को पैसा नहीं दे रहे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स नहीं हैं। आई डोंट नो अबाउट उस्मानिया, बट ऑल ओवर द कंट्री not a single university fills positions. 10 फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए, 2 परमानेंट हैं, 3 गेस्ट फैकल्टी हैं और उससे डिपार्टमेंट चला रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए जोक इज इट? जिस दिन गरीब का बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी में पहुंचा, आपने यूनिवर्सिटी से टीचर्स बाहर निकाले। दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। This is the question those children in schools are asking. इस देश के सरकारी स्कूलों में हकीकत ये है कि हमारे गांव के स्कूल में पढ़ने वाले 50% बच्चे, क्लास 5 में पढ़ने वाले 50% बच्चे क्लास 2 की टेक्स्ट के 2 सेंटेंस नहीं पढ़ सकते हैं। This is not my personal observation. This is the report, ASAR report, which comes out annually. और ये इंग्लिश में पढ़ने की बात नहीं कर रहा मैं, वो अपनी मदर टंग में नहीं पढ़ सकते हैं। This is the quality of education in our schools right now. So, to my mind, this movement is about asking these fundamental questions of our education system. एक बहुत सिंपल सा नारा है, हम हिंदी में बोला करते थे, सबको शिक्षा, समान शिक्षा, सार्थक शिक्षा. This should be the ideal for any society. Universal education, equal education, quality education. Why can't we demand that? In this country, we are being told that we are 1 trillion economy, we are 3rd largest or 4th largest economy. All these are bogus figures, incidentally. We are so large in population that we are number 3 or 4 in everything. We are number 3 or 4 in dacoits of this world, in thieves of this world, in malaria, in typhoid, and in GDP. Because our numbers are so large, so there is nothing to take pride in these things. But because the government says, we are growing so fast, we have done so well. Okay, you have done so well, please give more money to Osmania University. Please allow HCU to work. Give money for government schools. Allow government hospitals to work. Then I would believe that this country is progressing. तब मुझे दिखेगा ग्रोथ है आपके पास, प्रॉस्पेरिटी है. I don't see that. This is about employment. What we have is jobless growth. ग्रोथ हो रहा है, जॉब्स नहीं बढ़ रहे. This movement, to my mind, is about asking those questions. The youth of this country are asking a very simple question. Do I have a future? You are running this country, Mr. Modi. You are running this country, Mr. Reddy. Tell me, do I have a future? मेरे ख्याल से this movement, this protest is essentially about this question. Everything else is a matter of detail. Everything else falls into this. So what has this protest achieved so far? Resignation of the minister. वैसे मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये होती है कि पॉलिटिक्स में लोग ईमानदारी से बोल नहीं सकते. अगर धर्मेंद्र प्रधान को बेचारे को ईमानदार होने का मौका मिलता, बिना कैमरा ऑफ करके आपसे उससे पूछते, तो वो आपको कह देता मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर था ही नहीं, मैं इलेक्शन मिनिस्टर था,
मैंने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जितवा दिया। एजुकेशन के सारे फैसले तो पीएमओ लेता था। मेरे से रेजिग्नेशन तो ले लो, लेकिन आई हैड नो रोल इन एनी एजुकेशन डिसीजन ऑफ दिस कंट्री। दैट इज द फैक्ट। धर्मेंद्र प्रधान वॉज द इलेक्शन मिनिस्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट। He ran his elections. The poor fellow is being blamed for education. He had zero role in education. I'm not saying resignation is not an achievement. I think symbolically it's very important. क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। अगर छोटी चीज होती तो पहले दिन रेजिग्नेशन मिल जाता। आपने जैसे कहते थे ना, वो किले का दरवाजा तोड़ दिया। किले का दरवाजा तोड़ने का मतलब होता था कि अब एक एम्पायर के, पूरा एक एम्पायर होता था, उसका एक छोटा सा किला होता था, लेकिन उस किले का दरवाजा आप तोड़ सकते हैं या नहीं, दैट यूज्ड टू बी द रियल थिंग। सो धर्मेंद्र प्रधान डज नॉट मैटर, मगर आपने किले का दरवाजा तोड़ दिया है, दैट इज व्हाट मैटर्स। दिस मूवमेंट हैज ब्रॉट इन न्यू लीडरशिप and I welcome it. सबको अभिजीत दीपके का नाम पता है, और मुझे एक बहुत खूबसूरत बात ये लगी, जैसे आपके यहाँ ना इसमें पैनल में एक महिला चेयर कर रही है, वैसे एक दलित इस देश की एक मूवमेंट को लीड कर रहा है जो कि SC ST की मूवमेंट नहीं है, SC ST के मुद्दे पे नहीं है। एक नॉर्मल रेगुलर मूवमेंट इज नॉर्मली बीइंग लेड बाय ए दलित बिकॉज ऑफ हिज नॉर्मल लीडरशिप क्वालिटी। दैट आई थिंक इज ए ब्यूटीफुल। और मैं बार बार कहता हूं, बहुजन पॉलिटिक्स के साथियों को कहता हूं कि बहुजन पॉलिटिक्स कई बार इस देश में ये हो जाती है मांगने की कि मेरा हक दो, मुझे पूरा हक दो। कभी यूं करके मांगते हैं, कभी यूं करके मांगते हैं, लेकिन मांगने की मूवमेंट है। तुम बांटोगे, लेकिन तुम मुझे ठीक शेयर दो। बहुजन पॉलिटिक्स ये होना नहीं चाहिए। बहुजन पॉलिटिक्स ये होनी चाहिए, मैं बांटूंगा, तुम्हें भी ठीक शेयर दे दूंगा, मैं जस्टिस से बांटूंगा। तो यूं करने वाली मूवमेंट होनी चाहिए, यूं वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये देने वाली कि हम बांटेंगे इस देश में। और मैं उसकी शुरुआत देखता हूं इस मूवमेंट। सो यस, देयर इज लीडरशिप। When we think of Dipke, we think of Saurabh, we think of Ashutosh, we should also think of Neha. We should also think of Irfan. क्या बढ़िया बोला इन लोगों ने, जैसे पूरे देश का गला खोल दिया। नई लीडरशिप आई है। अब लोग मुझसे पूछते हैं ये पॉलिटिक्स में जाएंगे क्या, ये पॉलिटिक्स करेंगे क्या? मैं कहता हूं आई रियली होप दैट दे डू सो। डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स इज द हाईएस्ट एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ। तो अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो इससे कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती है। आप सोचिए कितना बड़ा पाखंड होता है इस देश में, द हिपोक्रेसी दैट दे से ओ माय गॉड, ऑल दीज लीडर्स आर वेरी करप्ट, दीज पीपल आर फ्रॉम डायनेस्टी, these people are from business family, these leaders are very bad, but you should not do politics. तो भाई कहां से आएगा लीडर? मार्स से आएगा, मून से आएगा, कहां से लीडर्स आएंगे? अगर यंग लोग यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो फिर पॉलिटिक्स कौन करेगा? प्रॉपर्टी डीलर वाले का बेटा, नेताजी का बेटा, वही पॉलिटिक्स करेगा। So yes, it has given new leadership. I do not know if they become political leaders or not. I really hope they become political leaders. और आप भी जो लोग बोले हैं, आप भी, और जो लोग नहीं बोले हैं यहाँ, आप सब भी पॉलिटिक्स करेंगे। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी का एसेंस है पॉलिटिक्स। You can have dictatorship where there is, you can have dictatorship politics without democracy, but you cannot have democracy without politics, क्योंकि डिक्टेटरशिप में भी पॉलिटिक्स होता है।
So you can have politics without democracy, but you can never have democracy without politics. So पॉलिटिक्स करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर कीजिए। नई लीडरशिप मिली है, इस मूवमेंट ने नए सिंबल्स और नई ग्रामर दी है। सुकुमार भाई ने बताया, फॉर क्वाइट सम टाइम आई हैव बीन एडवोकेटिंग दैट फॉर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, one of the best antidote to authoritarianism is comedy. दुनिया भर के डिक्टेटर्स को ऑपोजिशन से डर नहीं लगता, आर्म्ड रेबेलियन से भी डर नहीं लगता, उनको चुटकुले से डर लगता है, उनको म्यूजिक से डर लगता है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आप में से कितने लोगों ने इकबाल बानो का हम देखेंगे सुना है? इकबाल बानो ने एक गाना गाया था, हम देखेंगे। चलिए, आप सबके लिए आज के लिए रिकमेंडेड रीडिंग है, जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिए इकबाल बानो फैज हम देखेंगे। आई विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। General Ziaul Haq was the dictator of Pakistan at that time. बिल्कुल अपनी पीक पे था उनका रिजीम, और पाकिस्तान की जैसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती हैं, सेंसरशिप, सब कुछ बंद, ये वो, और लोग कहते थे जनरल जियाउल हक को कौन क्वेश्चन कर सकता है, इतना पावरफुल आदमी। पाकिस्तान में उन दिनों, क्योंकि हर डिक्टेटर को रिलीजन को इस्तेमाल करना होता है, नेशनलिज्म और रिलीजन, ये दो चीज़ों का इस्तेमाल हर डिक्टेटर करता है। तो जनरल जियाउल हक उस वक्त पाकिस्तान को इस्लामिक बना रहे थे, और वो इस्लामिक बनाने में कपड़ों का इंपॉर्टेंस है, कपड़ों से पहचानने का मामला पुराना है। तो जनरल जियाउल हक कहते थे उस ज़माने में कि आपको इस्लामिक कपड़े पहनने चाहिए। तो उन दिनों पाकिस्तान में साड़ी पहनना अन इस्लामिक माना जाता था। तब लाहौर में ये म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ। इकबाल बानो ने काले रंग की साड़ी पहनी। साड़ी पहनना अन इस्लामिक माना जाता था, इसलिए उसने काले रंग की साड़ी पहनी, और साड़ी पहन के उसने लाहौर में वो गीत गाया फैज़ का हम देखेंगे। उसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सुनिएगा, वो लगभग 11 मिनट की है। वो गाना शुरू करती है, और गाने के बीच में हजारों लोग उस गाने को ज्वाइन करने लगते हैं। उसके बाद स्लोगन शाउटिंग शुरू हो जाती है गाने के बीच में। मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, बाहर टैंक खड़े हुए हैं, और वहां लोग स्लोगन शाउट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज द पावर ऑफ सिंबल्स, दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स। ये सारे जो डिक्टेटर होते हैं ना, ये गुब्बारे की तरह होते हैं। दीज आर बैलून्स ऑफ हॉट एयर। बस कोई एक ऑल पिन से पंक्चर कर दे, पंक्चर छोटा सा होता है, सारी गैस निकल जाती है बाहर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द यूथ प्रोटेस्ट हैज डन टू द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री। यू हैव ब्रॉट इन न्यू सिंबल्स, न्यू ग्रामर। वो मेरी ग्रामर नहीं है। इंस्टाग्राम मैं तो ज़्यादा जानता नहीं था, हाँ मोदी जी से ज़्यादा अच्छा जानता हूँ। जैसे मोदी जी करते हैं उतना खराब नहीं करता मैं, लेकिन मेरी जनरेशन का नहीं है इंस्टाग्राम। नई ग्रामर, नए स्लोगन्स, नए तरह के सॉन्ग्स, नए तरह के सिंबल्स, एंड यूज ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी। क्योंकि जैसा आपने कहा, डिक्टेटर को आप कहिए जल्लाद है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे आप कहिए जालिम है, उसे फर्क नहीं पड़ता। आप कहिए जोकर है, पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या करूं। दिस इज व्हाट इट हैज डन।
इस पे थ्योरी भी है, वैसे बाद में कभी आप पढ़ना चाहें, सोशल साइंस में इंटरेस्ट हो, रीड समवन कॉल्ड पोपोविच. पोपोविच इज ए राइटर थिंकर अबाउट मास प्रोटेस्ट, और वो कहते हैं डिलेमा एक्शन. सो पोपोविच डिलेमा एक्शन, इसको सर्च कीजिएगा, यू विल गेट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू रीड एंड फॉलो. सो दिस मूवमेंट has given us new leadership, it has given us new language, it has given us new symbols, and it has demolished the empire of lies. झूठ का जो साम्राज्य इस देश में बना हुआ था, उसको डिमोलिश किया. जैसा मैंने कहा, झूठ के साम्राज्य का चक्कर यही होता है, एक ऑलपिन से आप उसमें छेद कर दो. क्योंकि जब आप बार बार, एक बार झूठ मैंने देख लिया ना, क्या होता है, आप मुझे बताइए कि हमने लद्दाख में चीन की सेना को मार गिराया, आई वुड बिलीव यू. मैं कौन सा लद्दाख गया हूं? आई डोंट सी सैटेलाइट इमेजेस, आई वुड बिलीव योर लाइज. आप कहिए देश प्रगति पे है, आई वुड बिलीव यू, क्योंकि होगा भाई, मैं तो नहीं देखता, देश होगा, मेरा गांव नहीं है पर देश जरूर प्रगति पे होगा. जीडीपी बढ़ गया है, आई वुड बिलीव यू. मगर जब आप कहते हो कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, फिर मुझे लगता है यार इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, तो मैंने अपनी आंख से देखा है. एक्सपीरियंशियल ट्रूथ इज समथिंग दैट ट्रम्प्स एवरीथिंग. कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन अगर आप मुझे ये बोलोगे कि तेरे बेटे को नौकरी मिल गई है, मैं कहूंगा यार ये तो नहीं हुआ. देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन मेरे बेटे को नौकरी मिल गई, कहां मिली है? झूठ बोल रहे हो तुम. और एक बार अगर झूठ पकड़ा जाए, एक कॉन्टेक्स्ट में झूठ पकड़ा जाए, तो फिर मुझे किसी बात पे यकीन नहीं होता. फिर मुझे लगता है दूसरी बात में भी ये भी झूठ होगा, ये भी झूठ होगा, वो भी झूठ होगा. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. The empire of lies has been shattered, and with it the Godi media has been completely discredited, जिसकी बेहद जरूरत थी. हिंदुस्तान के मीडिया का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, the way they treated farmers movement and the way they have written about this youth protest would be one of the most shameful chapter of Indian media. झूठ बोलते थे, दिन रात झूठ बोल रहे थे, मगर इसका फायदा क्या हुआ कि अब यंग लोगों को जब पता लग गया कि अच्छा ये तो मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो बाकी सब चीजों के बारे में भी उनको लगता है कि ये तो बाकी सब भी झूठ बोलते होंगे. This movement has exposed the politics of divide and rule. वो सुकुमार भाई ने बोला ही है, तो मैं उसको दोबारा नहीं बोलूंगा. लेकिन पहली बार हमारे जमाने में नारा होता था, कोई भी जो रूलिंग पार्टी होती थी, बीजेपी जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है. दिस वॉज ए स्टैंडर्ड नारा. बट दिस टाइम आई हर्ड ए डिफरेंट नारा. मोदी जब जब डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है. What a powerful way of describing the politics of divide and rule. बार बार हिंदू मुस्लिम, हर चीज में हिंदू मुस्लिम. This has been exposed. And what we have discovered is loss of fear. डर के सहारे पूरा का पूरा रिजीम चल रहा था. सारी डिक्टेटरशिप डर से चलती है. डर में ये नहीं होता कि मैं आपको सचमुच मारा, लेकिन आपको लगता है कि मुझे मार सकते हैं. फियर ऑलवेज रिजाइड्स हियर, और यहीं से अनलॉक होता है. यहां से खुल गया तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इलाहाबाद, सब तरफ हमने एक के बाद एक देखा कि डर खत्म हो रहा है. सर्वेलेंस हो रहा था,
लेकिन लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए नहीं थे, किसी ने मास्क नहीं लगाया था। ये जो डर का खत्म होना है, वो मैं समझता हूं इस मूवमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो आखिर में मैं बस एक और सवाल पूछ के और उसके 2-3 पॉइंटर्स देके अपनी बात को खत्म करूंगा। What is the way forward? How do we take it forward? First of all, resignation is not the end, be all and end all of it. Resignation is just the beginning. Nation after resignation is a question we should ask. रेजिग्नेशन तो हो गया, वो सिंबॉलिक था, किले का दरवाजा टूट गया, लेकिन अभी तो अंदर सब कुछ करना बाकी है ना। सो द वे टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज to do exactly what the CJP leadership is doing, and I want to compliment them, I want to salute them for what they are doing. गांव-गांव में जाके स्कूल का ऑडिट कीजिए, और आपने देखा है क्या हो रहा है। गांव में जाके आप सिर्फ कैमरा लेके कह रहे हैं स्कूल की क्या कंडीशन है, और रूलिंग पार्टी अपने गुंडों को भिजवा के रुकवा रही है, नहीं 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 स्कूल का फोटो नहीं लेंगे, प्राइवेट है, बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। अरे वहां भैंस बंधी हुई है, वहां गाय बंधी हुई है, कोई एजुकेशन हो नहीं रही है। सो द वे टू टेक इट फॉरवर्ड इज टू डू एन ऑडिट ऑफ ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, all the job related opportunities, all these things must be audited and accountability should be fixed. ये कर दीजिए, इससे बड़ी पॉलिटिक्स और इससे सुंदर पॉलिटिक्स कोई नहीं है। इस देश के हर सरकारी स्कूल में जाके कहिए कि वो बच्चे को वो चीज़ क्यों नहीं मिलती जो आपने राइट टू एजुकेशन के लॉ में लिखी हुई, दैट्स ऑल। उतना डिमांड कर लीजिए जो लॉ में लिखा हुआ है। पब्लिक एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स में लिखा हुआ है, बस उतना डिमांड कर लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ डिमांड करने की ज़रूरत नहीं। सो वन वे टू टेक इट फॉरवर्ड इज टू कंटिन्यू दिस ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड इज टू कनेक्ट विद अदर मूवमेंट्स। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा अपना दर्द है और मैं खड़ा होता हूं, जोर से चिल्लाता हूं, प्रोटेस्ट करता हूं, सिर्फ इतने से पॉलिटिक्स नहीं बनता है। पॉलिटिक्स तब बनता है जबकि इनका दर्द है, इनका दर्द है। जब मेरा दर्द हो तो ये खड़ी हो जाए, जब इनका दर्द हो तो मैं खड़ा हो जाऊं, उससे पॉलिटिक्स बनती है। दर्द से दर्द का रिश्ता बनाना, दैट इज पॉलिटिक्स। So what we need to do is to connect this protest of the youth with the protest of the farmers, protest of the workers. अभी नोएडा में वर्कर्स के साथ क्या किया आप देखिए तो। Protest of farmers, of workers, of Dalits, of आदिवासीज। जरा देखिए मध्य प्रदेश में केन बेतवा प्रोजेक्ट में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है इसका। Connecting all these protests is infusing energies, और वो एनर्जी जो है वो देश बदलने वाली एनर्जी, देश बनाने वाली एनर्जी। तीसरी बात, we have to strengthen it in terms of ideas. When I was young, we had opportunities of study camps. एक एक हफ्ते के हमारे ट्यूटोरियल हुआ करते थे यूनिवर्सिटी के बाहर, हमें 10-10 दिन तक बैठा के लोग पढ़ाते थे, पॉलिटिक्स क्या है समझाते थे। आजकल शायद ये नहीं होता, बट वी नीड टू डू दैट। वी नीड, बिकॉज आज अगर मोदी, बीजेपी और आरएसएस पावर में हैं तो इसलिए हैं बिकॉज दे हैव वन एन आइडियोलॉजिकल बैटल। And people like us who want to defend the constitution of this country,
we have lost an ideological battle. We have to regain that ideological battle. उसके लिए हमें आइडियाज़ को स्ट्रेंथन करना होगा, और आइडियाज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें पढ़ना होगा, सोचना होगा, लिखना होगा। यूनिवर्सिटीज़ ये काम करती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ पूरा काम नहीं करती। यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ एग्ज़ाम लेती हैं और डिग्री देती हैं, पढ़ाई नहीं करती, नॉलेज नहीं करती। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज़रूर करती होगी, लेकिन बाकी नहीं करती। पढ़ाई और नॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, डिग्री और एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। वो कैसे होगा? उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। सुकुमार गारू ने उसके बारे में जिक्र किया, जनगण मन। इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन से हैं रहिए, अपना काम कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का झंडा ऊपर उठा लीजिए, लेकिन साथ में कुछ समझ भी लीजिए, पढ़ लीजिए। तो इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बन सके, उसके लिए वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कॉल्ड जनगण मन। हमारे साथी राजा कार्तिकेय यहाँ हैं, किरण बिस्सा भाई भी यहीं पे थे, वो आपको उसके बारे में 2-4 बात बताएंगे। तो आप में से जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, या आपको पता है कि आपकी किसी और साथी को इंटरेस्ट होगा, इफ़ यू नो ऑफ समवन एल्स हु मे बी इंटरेस्टेड, प्लीज़ गिव देयर नेम्स, प्लीज़ कनेक्ट विद दैट, बिकॉज ये जो सारी अथॉरिटेरियन पावर है वो इसलिए है कि उसको अपोज करने वाले हर इंसान को लगता है कि मैं तो अकेला हूँ, वो सब इकट्ठे हैं, मैं अकेला हूँ। द डे यू डिस्कवर कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत लोग हैं, देन द पावर ऑफ डिक्टेटरशिप वैनिशेस। सो ये हमें करना है आइडियाज़ के लेवल पे। और चौथा और आखिरी चीज़, इस देश में इलेक्शंस जो हैं वो इस वक्त इस बुरी तरह से कैप्चर हो चुके हैं कि इलेक्शंस का लोगों के वोट से कोई खास मतलब नहीं बचा। एक डेमोक्रेसी में वोटर डिसाइड करते हैं कि सरकार कौन होगी। अब सरकार डिसाइड कर रही है कि वोटर कौन होगा। दिस इज SIR। अलग अलग कैंडिडेट्स कॉम्पीट करते हैं, सब कैंडिडेट्स कॉम्पीट करते हैं। यहां रूलिंग पार्टी तय करती है कि किसका नॉमिनेशन रिजेक्ट करवा देना है। देन व्हाट इज दिस कॉम्पिटिशन? ये तो चाइना में भी होता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि इन 3 लोगों में कॉन्टेस्ट होगा और वोट सिर्फ ये लोग देंगे। देन व्हाट इज द डिफरेंस? सो वी हैव टू फाइट फॉर clean, transparent and honest elections in this country, क्योंकि तभी अकाउंटेबिलिटी आ सकती है, तभी आप नेताओं से जवाब मांग सकते हैं। जब तक नेता को पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें करने दो बक, इलेक्शन तो मैं जीत ही जाऊंगा, then how does it matter? So we have to work on all these fronts together. I want to congratulate all of you again. यहाँ पे कोई नलसार से है? Anyone from नलसार? No. अगर आपके दोस्त हो नलसार में, प्लीज कन्वे माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज 400 आपने अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम ऊंचा किया है, आपने हैदराबाद का नाम ऊंचा किया है, उन 400 लोगों ने जिसने लिखते वक्त जरूर डर लगा होगा, सिग्नेचर करते वक्त लगा होगा कोई पंगा ना हो जाए। फिर जब बार एसोसिएशन का लेटर आया तो कुछ को जरूर कांपा भी होगा, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं कितनी ताकत होती है। देखिए वो ताकत आपने दिखाई है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं गांधीयन, कुमार प्रशांत, गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन। यूथ प्रोटेस्ट के बाद मैंने उन्हें बुलाया बोलने के लिए। उन्होंने मुझे कहा, योगेन, हम लोग खामखा अपने कंधे पे इतना बोझ लेके घूमते थे, तुम और मैं, मेरे से थोड़े से 5-7 साल बड़े हैं। उन्होंने कहा, तुम और मैं सोचते थे कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे ये देश नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, अब इन यंग लोगों को देख के और आपके यंग साथियों को, 4 यंग साथियों को सुन के
मुझे भी आज वो लगा जो कुमार प्रशांत ने कहा, अब मैं घर बैठ सकता हूँ, अब मैं मर सकता हूँ शांति से। शुक्रिया।